Hey guys, welcome to our YouTube channel. Myself Dinkar Mishra, and today we will be discussing chapter number 1, class 12, haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes. See, as far as class 12 chemistry syllabus is concerned, there are two volumes. You guys might be knowing that volume first and volume second. Volume first is comprised of inorganic chemistry and physical chemistry. So inorganic chemistry and physical chemistry, and volume second is totally comprised of organic chemistry. So haloalkanes and haloarenes is the chapter number 1 from this volume 2, that is organic chemistry. As far as volume first is concerned, this volume first is comprised of 42 marks and this volume second is comprised of 28 marks. Earlier it was 27 marks, but you guys might be knowing that solid state now it is not the part of our syllabus, and the group 15 from P block element is also not the part of our syllabus. That is why such modifications have been done, and now volume second is comprised of 28 marks. So as far as volume second is concerned, there are different chapters, almost 6 to 7 chapters are there. That the first chapter is haloalkanes and haloarenes. Chapter number second is basically alcohol, phenol and ether. Chapter number third is aldehyde, ketone and carboxylic acid. Chapter number 4 is basically amines, that is organic compounds containing nitrogen atom. So that is basically amine. Chapter number 5 is basically biomolecules. Chapter number 6 is polymer, and the last and the 7th chapter is chemistry in our everyday life. Chemistry in our everyday life. So all these 7 chapters are comprised of 28 marks. 28 marks. So out of 70 marks, our total, that is volume first is comprised of 42 marks and volume second is comprised of 28 marks. So 28 marks की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 28 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 100 comes out approximately 40%. So आप देखें अगर चैप्टर नंबर 2 मतलब जो वॉल्यूम सेकंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टोटल वेटेज है वो 40% है. मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टोटल वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो सबसे ज्यादा है, एंड दैट इज 40%. तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जस्ट बिकॉज उसका वेटेज काफी ज्यादा है एंड इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री. बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा आएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े से बहुत, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट है तो पी ब्लॉक जो चैप्टर है पूरा, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे. बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, आपको कुछ रेडिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे मैकेनिज्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो उनके पीछे कुछ ना कुछ हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, एंड बाय दैट लॉजिक, बाय दैट कॉन्सेप्ट यू वुड बी getting you would be getting your answer very easily as compared to inorganic chemistry and physical chemistry. So organic chemistry is quite scoring, it is quite easy as well as compared to physical chemistry and inorganic chemistry. So this was our blueprint. As far as weightage is concerned, from with weightage like how many marks would be allocated to this very chapter. So for organic chemistry, as far as official curriculum of CBSE is concerned, there are 72 periods. There are 74 periods, There are 74 periods for all these 7 chapters. Out of these 74, 12 periods are allocated for this haloalkanes and haloarene wala chapter. And when it is multiplied with total allocated marks, that is 28 marks, it comes out to be 4.54 approx. So from this very chapter you may expect around 4 to 5 marks questions. Though it is not very sure that how much marks would be
how much marks there would be allocated in our final exams, in your final exams, but it is a tentative idea that that we may expect that around 4 to 5 marks question would be from chapter number first. So haloalkanes and haloarenes, it is very easy chapter. From this very chapter we would be building our base. We will be trying to grasp some basic concepts of organic chemistry. In your class 11th you guys might have studied some basic concepts of chemistry as well, like organic chemistry आपने थोड़ा बहुत न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स, इन सब के बारे में आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, और उनके बारे में हम थोड़ा बहुत और इसमें भी डिस्कस करेंगे। यहाँ चैप्टर नंबर 12 में जिन्होंने क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है उनको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी है उनको भी और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा और मेहनत करेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप क्लास 11th में मतलब देख ही लिए होंगे कि रिजल्ट वगैरह कैसे आते हैं और कैसे कैसे लोग पास हुए हैं, तो उसी हिसाब से पढ़िएगा। मैंने क्लास 11th में भी बहुत बार बोला है कि हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है, तो ठीक है, खुद पे बीती है, अब उसको सही से करना है और इस बार अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइक 99, 100 मार्क्स तक आप ला सकते हैं केमिस्ट्री में, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। अच्छे से पढ़ने का मतलब यही है कि जो डेली बेसिस पे पढ़ाया जाए उसको डेली वो उसी दिन आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। आपको टालना नहीं है कि चलो आज का है तो कल पढ़ लेंगे, कल का है तो चलो परसों पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो दिया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको उसी दिन उसको रिवाइज कर लेना है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके 99, 100 कुछ भी मार्क्स आ सकते हैं, और 99 और 100 मार्क्स अगर आपके आएंगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी CBSE से मिलता है। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने कई बार ये क्लास में चीज़ें ये सब बताई हैं। चलिए ठीक है, तो haloalkanes and haloarenes में first of all there are, you guys might be knowing that there are two broad categories of organic compounds. As far as organic compounds are concerned, these organic compounds may be broadly divided into two categories. That the first one is aliphatic and second one is aromatic. This is basically a broader classification of organic compounds. There are some minute classification as well, but broadly organic compounds may be divided into two types, that is aliphatic and aromatic. Organic compounds वही जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, अदर हाइड्रोजन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे ही, हाइड्रोकार्बन से ही that class of compounds which contains carbon in it are known as organic compounds. Though there are some exceptions, but broadly that is by far a very acceptable definition. So organic compounds are basically aliphatic and aromatic. There are two broader classification of organic compounds. तो aliphatic में अगर आप देखें, एलिफैटिक का मतलब क्या है, जिसमें रिंग ना हो, साइकिल ना हो, मतलब जिसमें बेंजीन रिंग ना हो बेसिकली, तो मतलब जो कि मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिनका ओपन चेन स्ट्रक्चर हो, दे आर टर्म्ड एज एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स मतलब बेसिकली जो असाइक्लिक हो। तो एलिफैटिक में यू गाइज माइट बी नोइंग दैट देयर आर 3 क्लास ऑफ कंपाउंड्स। एलिफैटिक में आपने पढ़ा ही होगा, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, रट्टा मारते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 से ही। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला वो जो चैप्टर है, तभी से हम रट्टा मार रहे हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो इतना सब आपको पता ही है कि वी हैव 3 क्लास ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। यस, alkyne. And you guys might be knowing the general formula of these compounds as well, these classes as well, like what is the general formula of alkyne? Alkane का general formula क्या है? Yes, CnH2n plus 2, where n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? माइनस हो सकती है क्या, 0 हो सकती है क्या, नहीं, 1 से स्टार्ट होगी, मीन्स n इज बेसिकली नेचुरल नंबर हियर, 1 2 3 so on and so forth. अल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n. अगेन n स्टार्ट्स फ्रॉम 2 हियर, बिकॉज एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो इसके लिए 2 कार्बन एटम तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, एक के बीच में डबल बॉन्ड अब कहां से बनेगा, तो दैट इज बाय हियर n स्टार्ट्स फ्रॉम 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन. एंड अल्काइल के लिए जनरल फॉर्मूला बोलिए CnH2n minus 2s. तो CnH2n minus 2 where n again starts from 2 because ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक में तो बन नहीं पाएगा, तो दैट इज वाई
यहाँ से यहाँ के भी जो n की जो वैल्यू होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये देखिए एलिफेटिक कंपाउंड्स में अल्केन्स हो गया, अल्कीन हो गया एंड अल्काइन हो गया। तो अभी अल्केन में जो चैप्टर का नाम है वो हैलो अल्केन्स एंड हैलो, अभी हैलो एरियंस को छोड़िए, हैलो एरियंस नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ा देर बाद आएंगे उस पर। हैलो अल्केन्स को पहले बात करते हैं। तो हैलो अल्केन्स अगर आप देखें तो ये हैलो अल्केन, ये क्लास 11th में आपने IUPAC नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत ही सोच रहा हूं क्योंकि आपने ज्यादा तो पढ़ा नहीं है कुछ, लेकिन हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरियंस में अगर आप देखें तो ये हैलो जो वर्ड है ये प्रीफिक्स के रूप में है, अल्केन इज बेसिकली या रूट वर्ड। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करते समय मैंने एक आपको जनरल फॉर्मूला बताया था, बहुत सारे लोगों ने वो क्लास मिस करी थी, लेकिन थोड़ा बहुत लोगों ने पढ़ा भी है, तो मतलब इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा अभी कि क्लास 12th में आपने तो IUPAC नोमेनक्लेचर करना आपको आता है। हालांकि हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी करते रहेंगे कि व्हाट इज IUPAC नोमेनक्लेचर एंड हाउ डू वी नेम डिफरेंट कंपाउंड्स बाय यूजिंग IUPAC स्टैंडर्ड्स, IUPAC रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो IUPAC का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है IUPAC नोमेनक्लेचर अगर हम करते हैं तो सबसे पहले क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स हैं तो प्रीफिक्सेस हो जाएगा, प्रीफिक्स। देन वी हैव रूट वर्ड पूरा नहीं लिख रहा हूं बिकॉज आप लोगों को ये सारी चीजें पता ही है। प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड एंड देन वी हैव प्राइमरी सफिक्स एंड देन वी हैव सेकेंडरी सफिक्स। आपको पता ही होगा, मैंने कई बार बताया है कि रूट वर्ड का मतलब है कि एक कार्बन एटम के लिए मेथ हो जाएगा, 2 के लिए एथ हो जाएगा, 3 के लिए प्रॉप हो जाएगा। सेम वे प्रीफिक्स में कौन आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है, जिनके प्रायोरिटी, जो मैंने फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल बनवाई थी वो किसी ने याद नहीं करी होगी, लेकिन 16-17 कंपाउंड की एक मैंने लिस्ट बनवाई थी, उसको आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। उसमें मैंने बताया था कि सबसे ऊपर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उससे भी ऊपर आपका सल्फोनिक एसिड होता है। तो सबसे जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी वो सफिक्स में जाएगा एंड दैट वुड बी सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में आपका एन लगेगा या फिर इन लगेगा एंड या फिर आइन लगेगा, ये आपके प्राइमरी सफिक्स हैं। सेकेंडरी सफिक्स में बेसिकली अगर अल्कोहल है अल्कोहल है तो ऑल लग जाएगा, अल्डिहाइड है तो अल लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड लग जाएगा। सेम वे आप अदर फंक्शनल ग्रुप के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप ये देखिए रूट वर्ड मैंने आपको बता दिया। प्रीफिक्स के लिए जो भी जिसकी भी प्रायोरिटी लो होगी, जिसकी प्रायोरिटी लेस होगी वो प्रीफिक्स में जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और अल्डिहाइड भी, तो अल्डिहाइड की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंडरी सफिक्स में एंड अल्डिहाइड किस में आ जाएगा, प्रीफिक्स में आ जाएगा। सो दिस वे। तो हैलो अल्केन्स का मतलब क्या है कि अल्केन में मैंने क्या किया है, हैलोजन ग्रुप को ऐड कर दिया, इजंट इट। मतलब अल्केन मॉलिक्यूल में अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर इसमें से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम्स को हम रिमूव करके इसमें क्या जोड़ दें, उन्हीं सेम पोजीशन पे ही हम क्या कर दें, हैलोजन ग्रुप को ऐड कर दें। ऐड करने का मतलब अटैच कर दें कार्बन एटम से, तो क्या हो जाएगा, हैलो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लाइक इफ वी हैव अल्केन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, लेट्स से वी हैव R इज बेसिकली आर को किसके लिए डिनोट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आर इज बेसिकली फॉर एल्किल ग्रुप्स। हाँ, तो आर एच अगर हाइड्रोजन ही है एल्किल ग्रुप से तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अल्केन है। अगर इस अल्केन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके और इसमें हम किसी हाइड्रोजन एटम को ऐड कर दें, लिंक कर दें, अटैच कर दें इसी एल्किल ग्रुप से, मतलब इसी कार्बन एटम से, तो आर एक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई H हट गया तो क्या जो बन जाएगा, H की जगह पर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। सो दिस वे दिस वाज बेसिकली अल्केन, सो ये क्या हो जाएगा आपका एल्किल। सी दिस ग्रुप इज बेसिकली एल्किल ग्रुप। तो एल्किल एंड फॉर हैलोजन हम क्या यूज करते हैं, जब भी ये आपका सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा तो हैलोजन के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, आइड सफिक्स यूज करते हैं ना। तो हैलोजन से तो क्या हो जाएगा, हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड्स आर आल्सो टर्म्ड एज हैलो अल्केन्स। एल्किल हैलाइड्स आर आल्सो टर्म्ड एज हैलो अल्केन्स। तो शायद आप लोग को समझ में आया होगा कि हैलो अल्केन्स का क्या मतलब है। हैलो अल्केन्स का कुछ नहीं मतलब है। हैलो अल्केन्स आर बेसिकली सिंपली व्हाट दे आर अल्केन मॉलिक्यूल्स एंड व्हेन one or more than one hydrogen atoms are replaced from alkene molecule with the help of halogen atoms, then the formation of a class of compound take place and that is termed as alkyl halide or haloalkanes. So this is what we have. After this haloalkanes, you guys might be wondering that
अल्केन के लिए तो हमने देख लिया। व्हाट अबाउट अल्कीन और अल्काइन, क्या इनके भी डेरिवेटिव्स बनेंगे? क्या अगर हम अल्कीन में हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके कोई एक हाइड्रोजन एटम जोड़ना चाहें, या अल्काइन मॉलिक्यूल्स में से हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके हम फिर से हाइड्रोजन एटम को जोड़ना चाहें, तो क्या इनके भी डेरिवेटिव्स बनेंगे? यस। तो क्या कैसे बनेंगे देखते हैं जरा। मतलब जब भी हम अल्केन से रिमूव करेंगे एक हाइड्रोजन एटम को या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम्स को, तो हमको हैलो अल्केन्स मिल जाएंगे। द सेम वे अगर हम अल्कीन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करेंगे तो भी हमको कुछ ना कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे। मतलब अल्कीन से अगर रिमूव करेंगे तो हैलो अल्कीन्स बन जाएंगे, अगर हम अल्काइन से रिमूव करेंगे तो हैलो अल्काइंस बन जाएंगे। इजंट इट? देखते हैं कैसे। लेट्स से we have alkene molecule like C double bond C, and then we have another carbon atom. Just we are taking one example here, and let's say we have hydrogen atom here, okay, and we are removing this hydrogen atom. We can remove hydrogen atom from any of these three carbon atom, but we are just removing this hydrogen atom from this terminal carbon atom, okay, just for an example, just for an insight. तो आप अगर देखें इस हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके इससे अगर हम हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया जाए इससे, तो क्या मिल जाएगा हमको भाई? इस हाइड्रोजन एटम को हटा करके इस हाइड्रोजन एटम को ही हमने लिंक कर दिया है। इसी कार्बन एटम से हमने क्या किया? सेम प्लेस से ही, जिस प्लेस से हाइड्रोजन एटम हटेगा उसी प्लेस पे ही हमारा हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा। जहां से हाइड्रोजन हटेगा उसी प्लेस पे हमारा हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। दिस वे। अब आप देखेंगे ये क्या था? अल्कीन था। इट वॉज बेसिकली अल्कीन। तो ये क्या बन गया आपका? हैलो अल्कीन। बिकॉज आप जानते हैं कि जो भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो सब किस में जाते हैं? प्रीफिक्स में जाते हैं। जैसे फ्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा? फ्लोरो हम यूज करेंगे, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो, तो दीज आर द प्रीफिक्सेस। तो दैट इज व्हाई ये हैलो जो है ये बेसिकली वही ग्रुप 17 एलिमेंट्स आपके फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए हैं। तो हैलो अल्कीन्स, और इट इज आल्सो टर्म्ड एज अल्की। देखिए ई को हटा करके वाई जोड़ दीजिए भाई। एल्केन से एल्किल बना था, तो एल्किल से क्या बन जाएगा? अल्कीन से क्या बन जाएगा? एल्किनिल और क्या? हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड हैलो अल्केन्स को बोलते हैं। सेम वे हैलो अल्कीन्स को क्या बोलेंगे? एल्किनिल हैलाइड। ओके, सो दिस वाज द केस। इन द सेम वे अगर हमारे पास में अल्काइन मॉलिक्यूल हो, लेट्स से वी हैव अल्काइन मॉलिक्यूल, ओके, एंड देयर इज अ वन हाइड्रोजन एटम। हम वैलेंसी सारी नहीं फुलफिल कर रहे हैं जैसे, क्योंकि हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, बस एक हम रॉ फॉर्म में स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मतलब है, सिर्फ बेसिक टर्म्स को सीख रहे हैं। ओके, तो अगर हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें यहाँ से और इसमें हम कोई हाइड्रोजन एटम को सेम प्लेस पे ही अटैच कर दें, जोड़ दें, लिंक कर दें इसी कार्बन एटम से, तो वी वुड बी गेटिंग लाइक दिस। लाइक यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। अब आप लोग आसान से इजीली गेस कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा भाई? ये इफ इट इज अल्काइन तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा भाई? हैलो अल्काइन। पता ही होगा, मतलब इतना तो आसानी से गेस कर ही सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? हैलो अल्काइन। या फिर इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए? अरे अल्केन को हमने अल्किल हैलाइड लिख दिया, अल्कीन को हमने अल्किनिल हैलाइड लिख दिया, तो अल्काइन को क्या लिखेंगे भाई? अल्काइनाइल, अल्काइनाइल, अल्काइनाइल हैलाइड। यस, अल्काइनाइल हैलाइड। So this is the basic classification, basic halogen derivatives of aliphatic compounds. Apart from these aliphatic compounds, we also have some other classes of aromatic compounds. But basically हमको जो शुरुआत में हमको जो डिस्कस करना था वो ये था कि हैलो अल्केन्स क्या होते हैं। तो ये हैलो अल्कीन है, हैलो अल्काइन के बारे में आपको इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन के लिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अल्काइन जैसी चीजें भी होती हैं। वैसे ज्यादातर जो रिएक्शंस हम पढ़ रहे होंगे, जो भी मैकेनिज्म इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे और जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो मोस्टली रिलेटेड होंगे हैलो अल्केन्स से ही। हैलो अल्कीन्स या हैलो अल्काइन से नॉमेनक्लेचर आ सकता है, नॉमेनक्लेचर आ सकता है, कहीं कहीं रिएक्शन में भी यूजफुल, मतलब आगे के रिएक्शंस में यूज हो जाएंगे, लेकिन मोस्टली हमारा जो फोकस होगा वो हैलो अल्केन्स पे ही होगा, ऑलमोस्ट 99% इस चैप्टर में। ओके, सो दिस वाज द केस। इसके अलावा अगर हम देखें तो वी हैव डिफरेंट, आपने कई बार पढ़ा होगा कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या फिर 1 डिग्री हैलो अल्केन्स के बारे में, 2 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। तो
अगर हम देखें तो बेसिकली ये क्या है, टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड, ये किसके बेसिस पे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम around central carbon atom, on the basis of carbon atom around central carbon atom. What is central carbon atom? The carbon atom which is directly attached with the halogen group, that is termed as central carbon atom. तो सेंट्रल कार्बन एटम के अराउंड जो भी जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करते चले जाएंगे, उस हैलो एल्केन की या फिर एल्किल हैलाइड की जो डिग्री है, दैट डिग्री वुड बी इंक्रीजिंग. लाइक इफ वी हैव दिस कार्बन एटम and we have this is the central carbon atom because this carbon atom is directly attached with the halogen group. Okay, so यहाँ पर अगर आप देखें तो here let's say we have this compound, just अभी एक हमारे पास ये कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड let's say we have this compound like this, another compound like we have like this R dash H. R dash is basically R dash लिखने का मतलब ये है कि R dash and R may be same और may not be same. यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मिथाइल जुड़ा हुआ तो यहाँ पर मिथाइल भी हो सकता है, यहाँ पे इथाइल भी हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है. तो R dash का मतलब ये बेसिकली है कि R dash and R may be same और may not be same. ओके, लाइक अगर थर्ड मतलब फोर्थ कंपाउंड अगर हम देखें, लेट्स से वी हैव लाइक दिस R dash and R double dash. ओके, लाइक वी हैव दिस. ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो CH3 and X, तो ये तो आपका CH3X है, इसका मतलब क्या है कि ये तो आपका मिथाइल हैलाइड हो ही गया, मिथाइल हैलाइड. इसके बारे में तो कुछ ज्यादा बात करनी नहीं है. अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर एक एल्किल ग्रुप है और दो हाइड्रोजन एटम है. तो चाहे आप ये कह लीजिए कि दो हाइड्रोजन एटम अगर हैं सेंट्रल कार्बन एटम से अटैच तो 1 डिग्री होगा, या फिर अगर आप ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन एटम से, अगर उससे एक एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा, या फिर 1 डिग्री, या फिर इट इज आल्सो टर्म्ड एज प्राइमरी एल्किल हैलाइड. प्राइमरी एल्किल हैलाइड भी आप इसे बोल सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री का क्या मतलब होता है? बेसिकली आप जान ही गए होंगे कि जो कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच है उससे कितने एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड है. ओके, आप हाइड्रोजन एटम करके भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो आसान लगता है दैट इज how many number of alkyl groups are directly attached with the carbon atom which is directly linked with the halogen atom. Means that carbon atom is basically central carbon atom. So how many alkyl groups are directly attached with the central carbon atom? On the basis of that we can divide these alkyl halides into 4 types. और ये तो 4 types का basically 3 types, ये तो मिथाइल हैलाइड है ही है. तो जो कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच है उससे कितने एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो आप गिन लीजिए, एल्किल ग्रुप्स या फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं वो आप गिन लीजिए. तो उसके बेसिस पे आप डिग्री डिसाइड कर सकते हैं. तो अगर मान लीजिए कि एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर कोई और ग्रुप भी हो सकता है एल्किनिल ग्रुप हो या फिर अल्कानाइल ग्रुप हो, या फिर हो सकता है कोई यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग लगी हो, तो ये कोई जरूर नहीं कि एल्किल ग्रुप ही होगा, बट आप ये समझिएगा कि यहाँ पर कार्बन एटम जरूर होगा. इस आर का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन एटम इस कार्बन एटम से जरूर डायरेक्टली अटैच्ड होगा, मतलब जो सेंट्रल कार्बन एटम है उससे कार्बन एटम जरूर डायरेक्टली अटैच्ड होगा. सो इफ देयर इज वन एल्किल ग्रुप, so if there is one alkyl group which is directly attached with the carbon atom which is again directly attached with the halogen atom, then that halide is known as 1 degree alkyl halide or primary alkyl halide. On the same basis, if there are 2 alkyl groups or the 2 carbon atom directly attached with the carbon atom which is directly attached with the halogen atom, then that alkyl halide is known as 2 degree alkyl halide or secondary alkyl halide. Okay, secondary alkyl हैलाइड. इन द सेम यहाँ पर कितने हैं भाई, तीन एल्किल ग्रुप्स हैं. 3 एल्किल ग्रुप्स हैं किसके अराउंड, सेंट्रल कार्बन एटम के अराउंड, जो कि सेंट्रल कार्बन एटम कौन है, जो कि हाइड्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा. और या फिर इसे क्या बोलेंगे, टर्शरी एल्किल हैलाइड. थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा भी, सिर्फ देखने में मत पढ़िएगा, क्योंकि देखने में मेरी थोड़ी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है और कहीं थोड़ा बहुत हौच पौच भी हो जाता है. तो आप थोड़ा सुनने पे और देखने में दोनों पे विश्वास रखिएगा. इसी क्लासिफिकेशन अगेन, अब इसके आगे हम थोड़ा और देखते हैं.
थोड़ा हम देखते हैं कि एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। दिस वाज बेसिकली एन ओवरव्यू ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एस्पेक्ट्स और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज बेसिकली फर्स्ट क्लास, so we are not going into the details of each and every reaction and each and every radicals and reagent and so on and so forth, but we are just giving some basic understanding. We are just trying to get the basic understanding of organic chemistry, and in that organic chemistry specifically we are going to we are discussing about haloalkanes and haloarenes. So we are not going into details of any of the topic, but we are just trying to get an overview of each and every topic. तो इसके आगे अगर हम देखें सारी चीज़ें भी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करने को भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए भी थे, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चंस 11th में करवाए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा बहुत हम यूपीएससी नॉमेनक्लेचर के भी देखेंगे। एक मार्क्स का, 1 या 2 मार्क्स का आपका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी आप थोड़ा सा आप उसे इग्नोर करके नहीं चल सकते, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 मार्क्स का तो फिक्स ही है, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर अब हम देखें अभी जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया था वो सब, उसमें कोई रिंग वगैरह तो दिखाई नहीं पड़ी थी, मतलब कोई बेंजीन रिंग तो दिखाई नहीं पड़ी थी। तो बेंजीन रिंग अगर नहीं दिखाई पड़ी थी इसका मतलब वो सब क्या थे, एलिफेटिक कंपाउंड्स थे। अभी बेंजीन रिंग या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स जहां पे आ जाएंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स हो जाएंगे, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक हैलोजन compounds. See, aromatic halogen compounds, again there are 2 types. These are 2 types. कौन कौन से? एक तो आपका होता है एरिल हैलाइड और दूसरा आपका क्या हो जाता है, एरल्किल हैलाइड। एरल्किल हैलाइड, देखिए ध्यान रखिएगा, ये एरल्किल है, एरल्किल, इसका मतलब आप इसे ये मत कर दीजिएगा, ओके। ये कुछ लोग बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, मतलब गलती कर देते हैं कि इसे एरल्किल पढ़ते हैं तो ये एरल्किल ही कर देते हैं, नहीं, ये एरल्कल है, बेसिकली एरल्कल ए हो गया यहाँ पे, हाँ, एरल्कल है। तो जैसे हमने वहां पर देखा था कि एलिफेटिक में 3 तरीके थे, कौन कौन से थे, हैलोअल्केन था, हैलोअल्कीन था एंड हैलोअल्काइन था, मतलब आपके एल्किल हैलाइड थे, एल्किनिल हैलाइड थे एंड अल्काइनाइल हैलाइड थे। सेम वे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड में भी आपके 2 तरीके के हैलोजन डेरिवेटिव्स आएंगे, कौन कौन से, एरिल हैलाइड हो जाएगा और कौन, एरल्किल हैलाइड हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा बहुत क्या, काफी ज्यादा डिफरेंस है, दोनों का स्ट्रक्चर ही अलग होता है और दोनों की प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा अलग होती हैं। अभी हमने जो सॉरी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स पढ़ा था, उनकी भी रिएक्टिविटी ऑर्डर सबका अलग अलग होता है, सबकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, सॉल्युबिलिटी भी वाटर में अलग अलग होती है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी अलग अलग होती है। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस बना दिए हैं और मतलब रट्टा मारते रहेंगे, नहीं, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। अभी हम आगे SN1 एंड SN2 रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1 एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको एल्किल हैलाइड दे देंगे एंड कहेंगे कि अरेंज द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड इनटू इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2 और ऑर्डर 1। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके कई बार एग्जाम्स में आता है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा। मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, इन सबका आगे यूज होगा। जो पहला लेक्चर नहीं सीखेगा या पहला लेक्चर ध्यान से नहीं करेगा, वो आगे के लेक्चर्स में जरूर फंसेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको पहले लेक्चर को थॉरली पढ़ना है, उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, थोड़ा बहुत क्या मतलब थॉरली रिवाइज करना है, और आप चाहें तो साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं जैसे जैसे लिखता जाता हूँ, क्लास में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। अभी ये ऑनलाइन क्लास है, पहली बार मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट वो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप लोग जैसा फीडबैक देंगे उसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। और क्लास में तो हम ऐसे ही करते हैं कि मैं लिखता जाता हूँ और जो बच्चे हैं आप लोग मतलब बच्चे क्या हैं, बराबर ही हैं सब, लेकिन हाँ ठीक है, जो मतलब एक स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आप लोग साथ साथ में लिखते रहते हैं, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे भी करिएगा, मतलब ऐसे नहीं है कि बस लगा करके और फॉरवर्ड करके और 1.25 की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे बस ऐसे नचा रहे हैं मुझे, या फिर उसको कहीं पॉज कर दे रहे हैं कि फिर उसके बाद मूवी देख रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। लेक्चर बैठ रहे हैं अगर देखने तो पूरा देखिएगा, अदरवाइज मत देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब लॉकडाउन में मजे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा एग्जाम के डेट बाकी है। जब आप पढ़िएगा तो पूरा ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा सोचिएगा कि हाँ मेरी क्लास में ही है,
और जैसे मेरे क्लास में आप लोग डिसिप्लिन शो करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पे भी शो करिएगा। तो एरिल हैलाइड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड्स आर बेसिकली दोज हैलोजन कंपाउंड्स और हैलोजन डेरिवेटिव्स इन व्हिच देयर वुड बी अ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का क्या मतलब है? बेंजीन रिंग आप जानते ही हैं, क्लास 11th में कई बार पढ़ाई भी था, इसका हमने प्रिपरेशन भी पढ़ा था कि इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब पास करते हैं 3 मोल्स ऑफ इथाइन तो हमको बेंजीन रिंग मिल जाती है। बेंजीन रिंग आर बेसिकली अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होता था, नहीं होता था भाई, हाँ, और रेजोनेंस की वजह से इनकी डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स भी नहीं है, तो ये किसके किसके बीच में होंगे, दैट इज वाई। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनता था बताइए? ये साइक्लोहेक्सेन तो हो ही गया, इसके बीच में क्या बना देते हैं, गोला बना देते थे, और कई लोग गोला ही मिस कर देते हैं, तो वो पूरी तरीके से वो बेंजीन रिंग रही नहीं जाएगी। तो दिस रिंग, दिस गोला मस्ट बी देयर inside this cyclohexane ring. So when there is gola inside this cyclohexane ring, then it is termed as benzene ring. तो सब लोग जानते हैं ये इन सारी चीजों के बारे में। एरिल हैलाइड्स क्या है? एरिल हैलाइड्स ऐसे हैलोजन कंपाउंड्स होंगे जहां पर जिसमें क्या होगा, हैलोजन कंपाउंड वुड बी डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, directly attached with the benzene ring. Like if we have a benzene ring like this and if halogen atom is there and that halogen atom is directly attached with the any of the carbon atom of this benzene ring, like if this is the condition, then it is termed as aryl halide. aryl halide, aryl halide. तो एरिल हैलाइड का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर हम यहाँ पे इस X की जगह पर अगर हम ये कर देते तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें एरिल हैलाइड में क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये CH3 ये क्या था भाई, टॉल्विन था ना, मिथाइल बेंजीन आप जानते ही होंगे। तो मिथाइल बेंजीन में या फिर टॉल्विन में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर या किसी भी पोजीशन पे, ये कोई जरूरी नहीं है किसी पोजीशन पे, लेट्स से हम यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ग्रुप अटैच कर दे रहे हैं, लेट्स से हमने यहाँ पे Br अटैच कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड हो जाएगा। क्यों? डेफिनेशन क्या है, एरिल हैलाइड में क्या होगा, हैलोजन ग्रुप्स वुड बी डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग। इसके अलावा और क्या है, हमसे कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई डेरिवेटिव भी हो सकता है भाई, ये एरिल हैलाइड का एक डेरिवेटिव भी तो है, क्योंकि प्रायोरिटी तो आप जानते ही हैं किसकी ज्यादा होगी, तो उस हिसाब से आप नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। लेकिन आपको एरिल हैलाइड के डेफिनेशन के बेसिस पे अगर आप जाएंगे तो एरिल हैलाइड्स आर सिंपली दोज कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दोज क्लास ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स इन व्हिच हैलोजन ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। ओके, तो बेंजीन रिंग के ये जो भी आपके 1 2 3 4 5 6 जो भी आपके कार्बन एटम उनसे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, किसी और जिस कार्बन एटम से अटैचमेंट कर दीजिएगा वो अलग क्लास हो जाएगी, वो आपकी कौन सी क्लास हो जाएगी, एरिल वाली क्लास हो जाएगी। यस, तो ये डायरेक्टली अगर अटैच है बेंजीन रिंग से, देन इट अटैच एरिल हैलाइड। ओके, अगर मान लेते हैं कि इस तरीके से कुछ है, लेट्स से वी हैव लाइक CH3 है और यहाँ पर हमने ब्रोमीन जोड़ दिया और यहाँ पर हमने क्लोरीन जोड़ दिया। अब ये क्या एरिल हैलाइड होगा? डेफिनेटली भाई, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, जिस जगह से आप हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे वहां पर आपको हाइड्रोजन एटम को जोड़ देना है, एंड दैट हाइड्रोजन एटम वुड बी डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, देन इट वुड कम अंडर क्लास ऑफ एरिल हैलाइड। ओके, तो एरिल हैलाइड के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो दिस वाज बेसिकली एरिल हैलाइड। इसके अलावा अगर हम देखें एरिल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, रब करें, तो आप लोग नोट करते रहिएगा साथ साथ में, ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ प्रवचन सुनने आए हैं, सत्यनारायण कथा नहीं चल रही है, तो कुछ ना कुछ पेन भी चलाते रहिएगा, पेन पेपर ले करके बैठिएगा और लेट वेट करके मत पढ़िएगा, स्टडी टेबल लगा करके अपना लैपटॉप मोबाइल फ़ोन जो भी है उसको रख करके और एक पेन और एक पेपर जरूर रखिएगा साथ में। ऐसे मतलब बस आ गए बैठ गए किसी तरीके से घर वालों को दिखाने के लिए, ये सब मत करिएगा। हाँ, तो सेकंड जो क्लास है कंपाउंड की वो क्या है, एरिल्किल हैलाइड। आप जानते ही होंगे, मैंने अभी बताया था कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हैलोजन कंपाउंड है, हैलोजन एटम है, दैट हैलोजन एटम वुड नॉट बी डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, बट इट वुड बी अटैच्ड विद द साइड चेन ऑफ द बेंजीन रिंग, वाओ, सी लेट्स से वी हैव दिस बेंजीन रिंग एंड यहाँ पर आपका CH3 है, तो इस CH3 का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप हटा करके 2 हाइड्रोजन एटम, मतलब 3 हाइड्रोजन एटम थे, 1 हाइड्रोजन एटम मान लीजिए हटा दिया मैंने और यहाँ पर एक मैंने Cl जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या एरिल हैलाइड है या एरिल्किल हैलाइड है? नाउ इट इज एरिल्किल हैलाइड।
मतलब बेंजीन रिंग से ये हैलोजन एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है। बेंजीन रिंग तो ये है ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन एटम पे तो क्लोरीन ग्रुप आया नहीं, क्लोरीन ग्रुप गया कहाँ, ये बेंजीन रिंग की ये साइड चेन थी। अब साइड चेन से कोई हैलोजन ग्रुप आकर के जुड़ गया तो इसका मतलब अब क्या हो गया कि ये दिस कम्स अंडर एरेल्किल हैलाइड। एरेल्किल हैलाइड कैसे, आप अगर इसको नॉमेनक्लेचर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर अगर इसका करना चाहेंगे आप ये आप जानते ही होंगे कि अगर ये कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था कि लेट्स से वी हैव CH2, अगर ये है देन इट इज टर्म्ड एज बेंजिल, देन इट इज टर्म्ड एज बेंजिल। अगर दो वैलेंसी खाली है और दो हाइड्रोजन, सॉरी मतलब एक वैलेंसी खाली है कार्बन एटम का, दो हाइड्रोजन एटम ग्रुप अटैच्ड हैं, दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं इस कार्बन एटम से, देन इट इज टर्म्ड एज बेंजिल ग्रुप। अगर मान लेते हैं कि दो वैलेंसी खाली है और एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, देन इट इज टर्म्ड एज बेंजल, then it is this group is termed as benzyl. And if there are 3 valencies which are vacant and there is no hydrogen atom attached with the carbon atom, then it is termed as benzo. So benzyl benzyl benzo, कुछ याद आया होगा अगर जिन्होंने क्लास 11th में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको मैं तो क्या कोई याद नहीं दिला सकता है, तो ठीक है, जिनको याद आया वो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद आया और अच्छी बात है, क्योंकि उनको एग्जाम में भी याद आने वाला नहीं है अगर वो पढ़ेंगे नहीं। ठीक, पढ़ लीजिएगा तो याद आ जाएगा, क्यों नहीं याद आएगा। हाँ यस, अगर ये बेंजीन रिंग है और इससे कोई कार्बन एटम अटैच नहीं है और डायरेक्टली एक वैलेंसी खाली है, मतलब एक कार्बन एटम से मैंने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया है, देन दिस ग्रुप इज टर्म्ड एज फेनाइल ग्रुप, देन इट इज टर्म्ड एज फेनाइल ग्रुप। तो ये तो आपका बैकग्राउंड हो गया, मतलब ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हम ये एरेल्किल हैलाइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एरेल्किल हैलाइड में क्या है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई हैलोजन ग्रुप नहीं अटैच होगा, किससे अटैच होगा, साइड चेन से हैलोजन ग्रुप अटैच होगा, साइड चेन से। तो ये बेंजीन रिंग की साइड चेन थी, साइड चेन से आकर के हमारा कोई हैलोजन ग्रुप अटैच हो गया, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज एरेल्किल हैलाइड। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए CH2 वाला ग्रुप मिल रहा है, मतलब ये बेंजिल है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड, क्या नाम दे देंगे, बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। अच्छा ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, क्या होगा ये कितने डिग्री हो जाएगा। अब इस कार्बन एटम से कितने अल्किल ग्रुप या फिर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है, कितने कार्बन एटम अटैच्ड हैं, तो इससे एक ही कार्बन एटम तो अटैच्ड है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 डिग्री हो जाएगा। अगर इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करना चाहे कैसे करेंगे भाई, कौन बताएगा कैसे करेंगे। देखिए दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम, तो देखिए वैसे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है बेंजीन रिंग में, तो भाई प्रिंसिपल जो ग्रुप होना चाहिए वो ये होना चाहिए, बट प्रिंसिपल ग्रुप ये नहीं होगा क्योंकि साइड चेन से हमारा हैलोजन ग्रुप अटैच हो गया है, दैट इज व्हाई प्रिंसिपल ग्रुप अब हमारा साइड चेन है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। एंड व्हेन बेंजीन रिंग कम्स इनटू when benzene ring act as substituent, then it is termed as what, बेंजिल। नो भाई बेंजिल तो ये है ना, बेंजिल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फेनाइल हो जाएगा। when benzene ring act as substituent it is termed as phenyl। तो इसका क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा भाई, 1 phenyl and 1 phenyl 1 chloro 1 phenyl 1 chloromethane 1 phenyl 1 chloromethane भाई 1 phenyl and 1 chloro क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, मेथ क्या है, रूट वर्ड है, एंड एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। तो सेकेंडरी सफिक्स कहाँ गया, सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। ठीक, तो ये 1 डिग्री हो गया। अगर इसी का, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था, अगर इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो मान लेते हैं कि हमारे पास में लेट्स से वी हैव दिस, तो ये एरेल हैलाइड है या एरेल्किल हैलाइड है, पता ही होगा क्योंकि डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एरेल्किल हैलाइड हो जाएगा। अब एरेल्किल हैलाइड हो जाएगा ये अगर, तो एरेल्किल हैलाइड में ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, क्या है ये भाई, कितने डिग्री है ये, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर आप हाइड्रोजन एटम से देख सकते हैं, तो कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पे, इस कार्बन एटम पे, इस सेंट्रल कार्बन एटम पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक ही है, तो अगर 2 थे तो 1 डिग्री था, अगर 1 है तो 2 डिग्री हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी हो जाएगा। जो मैंने वहां पे एल्किल ग्रुप अटैच बोला था ना कि कितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं, इसका मतलब यही था, एल्किल ग्रुप का मतलब वो कुछ भी था, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता था। मतलब यहाँ पर देखिए एक बेंजीन रिंग और 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, तो वो भी मैंने एक जनरल टर्म बोला था एल्किल ग्रुप, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ एल्किल ग्रुप ही होंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 1 होंगे, तो इसीलिए मैंने बोला था कि 2 तरीके से आप डेफिनेशन को याद कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री क्या, 2 डिग्री क्या, एल्किल हैलाइड, नो इट इज एरेल्किल हैलाइड। एंड व्हाट वुड बी द नेम, सी
यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास में क्या रूट वर्ड है, बेंजल, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, बेंजल। बेंजल और कितने 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 हेलोजेंस हैं भाई, कितने हेलोजेंस हैं यहाँ पे, 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई, एक प्रीफिक्स यूज करेंगे, एंड डाई क्लोराइड, डाई क्लोराइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जो आप आईयूपीएसी नंबर, ये तो आपका जनरल नेम होगा भाई, बेंजल डाइक्लोराइड ये जनरल नेम है, बेंजिल क्लोराइड ये जनरल नेम है, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ ये क्या आईयूपीएसी नेम है। तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे आप देंगे, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे भाई, ये अगेन वही प्रिंसिपल चेन यही हो जाएगा क्योंकि इससे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, तो 1, अब इसमें क्या लिखेंगे आप 1, सॉरी आप इसको ऐसे लिख सकते थे, देखिए जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, सॉरी तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई, आप इसको ऐसे लिखिएगा कि 1 क्लोरो 1 फेनाइल, इट इज बेसिकली 1 क्लोरो, क्योंकि भाई सी और पी में कौन पहले आता है अल्फाबेटिक, अगर आप अल्फाबेटिकली जाएं तो सी और पी में सी पहले आता है, तो दैट इज वाई कभी कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, माफ करिएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो उस हिसाब से देखिएगा। बेंजल डाइक्लोराइड में आप देखें तो 1 1 व्हाट डाइक्लोरो, 1 डाइक्लोरो, 1 डाइक्लोरो, 1 फेनाइल, और फिर क्या 1 डाइक्लोरो 1 फेनाइल व्हाट मेथेन, है कि नहीं, दिस वुड बी द आईयूपीएसी नेम, दिस वुड बी द आईयूपीएसी नेम एंड दिस वुड बी जनरल नेम। तो एक आप और आप लोग करके दिखाइए जरा कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा जरा बताइएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसका नाम जरा बताइए क्या हो जाएगा, पहले ये बताइए कि कितने डिग्री है भाई, कितने डिग्री हाइड्रोजन कंपाउंड है ये, कितने डिग्री के, पहले ये बताइए कि ये क्या है, एरल्किल है या फिर एरिल है, एरल्किल है या फिर एरिल है भाई, हाइड्रोजन ग्रुप तो डायरेक्टली अटैच है नहीं, तो बेंजीन रिंग से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरल्किल हो जाएगा, और एरल्किल अगर हो जाएगा, एरल्किल हैलाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, एरल्किल हैलाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि कितनी डिग्री है, अगर डिग्री अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी डिग्री है, तो डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी, 3 डिग्री हो जाएगी, या फिर टर्शरी भी आप बोल सकते हैं, जैसा हमने कई बार डिस्कस किया ही है। तो अगर इसका आपका नॉमेनक्लेचर करने को बोल दिया जाए, नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर अभी देखिए इसके 3 वैलेंसी खाली थे, तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो, तो बेंजो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा बेंजो, जनरल नेम बेंजो ट्राई ब्रोमाइड, बेंजिल बेंजो ट्राई ब्रोमाइड, बेंजो ट्राई ब्रोमाइड, दिस वुड बी द जनरल नेम। अगर आईयूपीएसी नेम अगर आप देखें, आईयूपीएसी नेम, तो अगेन यहाँ पे 1 आप दे देंगे, तो आप क्या कैसे लिखेंगे, 1 ट्राई ब्रोमो, 1 ट्राई ब्रोमो, एंड व्हाट 1 फेनाइल, अगेन मेथेन, ठीक है, तो दैट वुड बी द आईयूपीएसी नेम। सो दीज वर सम बेसिक टाइप्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, इसके अलावा और भी हैं, जैसे हमने, अगर हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करें इस चैप्टर में, अभी हमने क्या पढ़ा, तो कुछ नहीं पढ़ा है, अभी हमने सिर्फ बेसिक टाइप्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स देखे हैं, जिसमें हमने एलिफेटिक एंड एरोमेटिक को अलग अलग तरीके से पढ़ा है, मतलब जो हमारे पास में जो एलिफेटिक कंपाउंड्स थे उसमें हमने 3 तरीके के देखे थे हैलोजन कंपाउंड्स, कौन कौन से, हैलोअल्केन्स, हैलोअल्कीन्स एंड हैलोअल्काइंस, दैट वाज एल्किल हैलाइड, एल्किनिल हैलाइड एंड अल्कालाइन हैलाइड। इसके अलावा हमने जब एरोमेटिक कंपाउंड पे आए, एरोमेटिक कंपाउंड को मैंने बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब वो होता है कि जिसमें बेंजीन रिंग हो या फिर उसके डेरिवेटिव्स आर टर्म्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन रिंग आप जानते हैं 6 कार्बन एटम होंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होगा, और उसका रेजोनेटिव हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आप एक बीच में गोला बना देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, और उसमें भी हमने बताया कि एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड सिर्फ एक तरीके का नहीं होगा, उसमें 2 तरीके के होंगे, मतलब जो बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हो सकता है हाइड्रोजन को अटैच हो जाए, या फिर हो सकता है कि बेंजीन रिंग के साइड चेन से डायरेक्टली अटैच हो। तो बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच है तो वो एरिल हैलाइड की कैटेगरी में जाएगा, और अगर आपके साइड चेन से डायरेक्टली अटैच है, मतलब कार्बन एटम जो कि डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, और उससे अगर कोई कार्बन एटम, कोई हैलोजन एटम जुड़ जाता है, इट इज टर्म्ड एज एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में भी हमने किसी के कई टाइप के देखे, जिसमें हमने बेंजिल, बेंजो, बेंजल, फेनाइल ग्रुप के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया, और हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के बारे में भी इसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। इसके अलावा और भी अलग टाइप के हमको और भी डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास में हैलोजन कंपाउंड्स हैं, लाइक हमारे पास में एलाइलिक
एलाइलिक आप हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे आगे, आप विनाइल क्लोराइड मतलब विनाइलिक हैलाइड्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के हैलाइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद में हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इसमें अभी और कुछ पढ़ने को, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्लास थी, आप लोग थोड़ा बहुत फ्लो में आ जाइए। काफ़ी मस्ती हो गई अभी लॉकडाउन में, तो आप थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे भी फोकस करिए। और 11th के मार्क्स आप जानते ही हैं, तो उस हिसाब से आपको 12th में कितनी मेहनत करनी है आपको पता है। ओके, चलिए, थैंक यू।